Hey everybody, good evening. Welcome to the Paradigm Shift. Happy Holi to all of you. Hope you have a very safe Holi tomorrow. Today we are in conversation with Kamal Rochlani. He's a travel and a health enthusiast. We met him at a Satvik lunch movement, and we never had a traveler before, so we had to have him. So he's here. Let me just add him. We need to see what makes Kamal tick. Why does he want to climb up on all the mountains? What is before he goes dream? Hi Kamal, how are you? Hey, hello. Yeah, how are you? I'm good. I was just telling our viewers that we are going to talk about everything that makes you tick. Why do you want to climb up on all the mountains? What are all your dreams before you go? Wale dreams. That is so sweet. So, Kamal, you can hear me, right? Or everybody, Yes, yes. you can hear me clearly. All right. So, Kamal, tell us that have you always been this adventurous? Like as a kid, were you always adventurous? No, not at all. Yes, I was like a guy just स्कूल में अच्छा बच्चा बन के वैसा. So it was not like that कि adventures क्या होता है पता भी नहीं था. I live in a particular city है. I used to live in. So now right now I stay in Kalyan. So वो एरिया एक बाउंडेड था. सब कुछ वहाँ मिल जाता था. क्या होता है वो भी तो बहुत दूर की बात है. So at that time, in like my childhood, we used to watch Discovery or National Geographic और एक के देखा करते थे और मतलब काफी इंटरेस्टिंग था कि कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है. सो वी हैव दैट मेंटेलिटी कि जब हम अब्रॉड जाएंगे, राइट. सो मेरे मन में एक चीज है कि नहीं, इंडिया भी ब्यूटीफुल हो सकता है, हमें हम वहां पे पहुंच नहीं सक रहे हैं. सो आई स्टार्टेड Correct. देन इंडिया में ही कर दिया. एंड माउंटेन्स huge mountains. I used to see it like this. So there is Right. बना कैसे ये हुआ, how is that possible? So I Right. there's lots of things we need. There are lots of things which we need to learn from. और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है जिसके जवाब आज तक we don't किसी को भी नहीं है. Right. That is amazing. So, like, when did this mountain climbing really start for you? What age, and how did you get there? ओके, तो इसका ऑनेस्ट आंसर है कि मुझे भी पता नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ. मन में ये पैशन था, ये पता था. ऑफ कोर्स जो भी करना है खुद के मनी से करना है. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू ट्रैवल. Okay. तो Right. अपने आप लाइफ में जैसे ग्रो किया, खुद से सेल्फ इनकम होने डिपेंड सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए एंड देन स्टार्टेड बैकपैक करके जर्नी पे. आई ऑलवेज हैड अ ट्रैवल सो. एंड एट दैट टाइम मुझे कोई नॉलेज नो बीइंग इन अ यंग एज यू गेट स्केयर्ड. सबको एक फियर होता है कि अरे मैं कैसे ट्रैवल करूंगा या कैसे ट्रैवल करूंगी, कल अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो वो एक Yeah. फियर के साथ फाइट करने आना चाहिए. सो वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस, हाउ टू फाइट सच काइंड ऑफ फियर. वो लाइफ में एक. Yeah. सो Correct. सर टू योर क्वेश्चन, लाइक मुझे कब पता चला, पता ही नहीं चला. आई जस्ट दैट्स इट. Right. No, because आप बोल रहे हो कि डर लगता है when you're young. I तो like at 50 this year I'm going to turn 50. I'm still scared. I'm like thinking कि oh my God, solo travel. ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, and then up in the mountains, no internet, no network. How will I get in touch? I'm already thinking of all those things. That is actually a good thing, and I believe that right now. And I'm coming from the generation when I was studying there were cell phones, and I pray thank God there were no cell phones. अगर cell phones, because मैंने पढ़ाई नहीं करी होती, I never wanted to हाँ. my laptops or any digital media. Okay, so आज Right. पढ़ते हैं तो there is a huge difference, huge difference reading from the digital media and reading from the physical. So Yes. चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए. अगर कोई चीज़ का पैशन है तो उसके साइड Right.
मंजिल वहां पहुंचाएगी जहाँ एग्जैक्टली Hmm. स्टार्ट किया। सबसे पहले तो इनकम, जैसे मैंने बताया, इनकम होना इम्पोर्टेंट है। जैसे इनकम आया Yeah. फॉर पेरेंट्स, द सेकंड बिग स्टेप। अब Sorry, just 1 second. Sorry, 1 second. We have, even I am also noticing that आपकी आवाज ना break हो रही है, and somebody in the audience has also said that your आवाज, मतलब जब आप एक sentence बोल रहे हो, दो शब्द नहीं सुन रहे starting के, फिर end के सुन रहे. So what do you want to do? Do you want to just go out and come back again? श्योर Do you want to join the live again? Yeah. Kamal will be with us just in 1 second. Please stay with us. Thank you guys for joining. Mandar, Manish, Santosh, Chetna, Sunita, Karan, Ashish. Okay. We've added him here. Yes. So you आ रहा जा रहा है थोड़ा सा. आई एम एट फुल नेटवर्क राइट नाउ। हाँ. Now we can hear you. Now we can hear you. ओके, तो वी वर You were saying about your parents. या सो सेकंड स्टेप वाज लाइक पेरेंट्स को सही तरीके से समझाओगे व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स, हमारा बच्चा खुश रहे, राइट। एवरीबॉडी लाइक बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे, तो देयर मोटो इज जस्ट यू टू बी हैप्पी। सो मेक Right. रियलाइज यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू हैव, व्हाट डू यू वांट टू डू, बिकॉज उन्होंने आपको Yeah. पैदा किया है एंड दे ऑलवेज वांट बी। सो लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट लाइक्स, व्हाट इज योर पैशन। That is so beautiful. So what has been your most challenging journey, Kamal? So my most challenging journey was like okay, जब भी like I live, I think there are many of my friends also who are my school friends and college friends भी हैं, and I was Hmm. vernacular medium, okay, when Hmm. I was from Sindhi medium, my mother tongue is Sindhi, so it was a big medium, then going towards medium, complete 11 12 science did, then engineering did, okay, so engineering का भी करना, honestly नहीं करना था, कर लिया, और जो भी चीज मेरे लाइफ में मैं अपना पैशन बना देता, जो भी करूंगा अच्छे से करूंगा और ध्यान देके करूंगा, अदरवाइज सो दैट इज व्हाट आई डिड। तो दिस वाज अ बिग शिफ्ट, आई केम टू इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद में अटक गया, बिकॉज राइट नाउ आई हैव 10 आई एम वर्किंग विद एलएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। Okay. Yeah, so I was like stuck there and still I am doing a very good job there, अपना एक जहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट पैशन, तो जब आपके मन में सच्चे दिल से कोई पैशन होता है एंड यू रियली प्रे दैट, वो आपके सामने आ जाता है। एंड आई थिंक टुडे व्हाट इन दिस एरिया, लाइक आई एम गाइडिंग मेनी पीपल अबाउट देयर हेल्थ एंड अबाउट ट्रैवल Yeah. थिंग हैप्पीनेस। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके लाइफ में जिसको आपने लॉस कर दियो और करने के बाद बोलोगे इससे गंदी चीज लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? कुछ लोग बोलते हैं मेरे अपने मॉम को खो दिया, तो दिस कैन बी द वर्स्ट थिंग एवर। टेल मी एनी Right. व्हिच शुड बी इंडिपेंडेंट, should not be related to anyone. Do you have a mind? Things that you've not done in your life, I think, like regrets. For me, I think it would be like that when I'm on my deathbed and I'm counting ye nahi kiya, ye nahi kiya, ye nahi kiya. Things probably like that. Tell me. Yeah. So personally, I felt this also in my tell much here about. So the big thing which you lose is you yourself. Yes. If I am looking at myself and I see, अरे वो कमल कहाँ गया जो पहले, not looking you, Hmm. like, so don't self, अगर आपने अपने आप को ही खो दिया, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। Right. Just 1 second, Kamal. Sorry. Our flow is getting broken. There are people who are saying that आपका अभी भी आवाज break हो रहा है. Can we use an earphone? Do you have a wired earphone or something? So I will Let's try that. again, okay. And Jinx, Jin,
Jink X7107 says. Guys, thank you so much. Let's just wait for him to come back and then we can listen to his beautiful story. His voice is breaking, so I think there's some kind of technical this thing. Thank you everybody for joining in. Kruti, Saurabh, Srini, Jinx, um, Aki, Jay Saurabh, Vaibhav, 93 Nit, Chanda, Chandan, Barun, hi everybody. Rongpa, Aditya. Guys, we're all just waiting for Kamal to rejoin. Just give him 2 minutes. His voice was breaking, and the stuff that he's talking about, his passion and the way he wants to travel and everything. So let's let him just join in and then we'll hear from him. Khushi, living pretty naturally. Hey, hi everybody. Tell us about yourself. Okay, just 1 second. He's here. Hey Sunita, I'm Deepshikha Mehra. Hi. Yeah, hi. All your followers are now asking me what is my name, and also I was like very kicked. Okay, Yeah, this. So let's say something. So let's see yeah, whether you're clear. yeah. I hope it is working now, right? Perfect, Perfect. perfect. Okay, great. Okay. आप कुछ बोल रहे थे about your this. Sorry, your flow. I mean, I love what you're saying, and it was so irritating Yeah. that we couldn't hear. So I was talking this, I personally experienced in my life, and telling you very honestly that whatever is going on in your life, there is one Yeah. thing you should not miss. That is you yourself. If you know what you are, you know what do you like, you know everything. Just be sure that you're not missing yourself in that case. Like you are Right. doing, like for your husband, you're doing something, for your girlfriend, you're doing something. So just to make him happy, you're losing yourself. Hmm. Just be sure that you are with yourself. Correct. That is so beautiful. So going back to that question, what was your most challenging trip? Like what was the most scary trip or whatever? Okay, it was like pushing, like I was in 2 years back, I did a Spiti Valley trip. Okay, so that was a heaven. It was completely a heaven. And मुझे मेरे friend Ritan Sarkar, he is my good friend. So he's like me in traveling case. So उसने मुझे invite किया कि चलो चलते हैं. Riding. I'm not a rider. I'm not a good rider actually. Mountains में ride करना is a very big thing for me. और मैंने बोला किसी को भी नहीं बताया. और मैंने बोला हाँ चल मैं ये cross कर दूंगा, जाऊंगा मैं. एंड आई नो दैट 10 डेज के लिए मुझे ये राइड करनी थी. एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे 2 दिन पहले पता चला था कि मुझे जाना है. और मैंने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी. और मैं ये 10 डेज की ट्रिप पे गया जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आने वाला था. ओके, सो दिस ट्रिप स्टार्टेड इन ऑन थर्सडे. और थर्सडे को मैं दोपहर को चंडीगढ़ पहुंच गया. एंड 1 बजे ऑफिस में फोन करके बोल दिया दैट आई एम नॉट वेल. ओके. सो बोला ठीक है, थर्सडे का दिन तो निकल गया. चंडीगढ़ से हम लोग रात को अराउंड 1 या 2 बजे हम लोग शिमला के आगे एक चैल गांव है वहां पहुंचे थे. तो नेक्स्ट डे फ्राइडे आ गया. एंड ऑनेस्टली मतलब चंडीगढ़ से जब ने स्टार्ट किया था तब बहुत गर्मी थी. तो वी वर लाइक आराम से अच्छे कपड़ों में थे. और रात को अराउंड 10 बजे शिमला में बारिश चालू हो गई. तो हमारे Oh, सारा बैकपैक सब गीला हो गया. लिटरली वी गाइज वर स्लीपिंग इन अंडरवेयर्स होल नाइट देयर. देन नेक्स्ट डे पे हम लोग चहलगांव में मॉर्निंग में उठे. एंड हमारी नेक्स्ट जर्नी आगे की तरफ स्टार्ट हुई. दैट वाज टुवर्ड्स रामपुर. एक गांव है वहाँ पे, कुफरी के आगे आता है ये गांव. तो हम लोग वहाँ पे गए. एंड वहाँ पे हम लोग सीधा शाम को पहुंचे. मतलब मॉर्निंग 8 o'clock वी स्टार्टेड एंड वी रीच्ड इन द इवनिंग 7 o'clock.
Oh my God. इतनी लॉन्ग जर्नी है वो। तो फ्राइडे भी हो गया, तो फ्राइडे को मैंने बोला कि शायद वायरल फीवर हुआ है ऑफिस में, और शायद से मेरा ब्लड टेस्ट होगा, तो सैटरडे शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, देन आई विल टेल यू कि क्या हुआ है। ठीक है। तो ऑफिस का फ्राइडे भी निकल गया, फ्राइडे निकल गया तो सैटरडे संडे भी निकल जाएगा आराम से, तो 4 दिन के ट्रिप हो गए आउट ऑफ 10। बाकी 6 डेज मैनेज करना है। देन वी रीच रामपुर से हम लोग कल्पा गए सैटरडे। कल्पा बहुत अच्छा था। कल्पा के बाद में नेक्स्ट संडे के दिन संगम रिवर आता है, जहाँ से स्पीति वैली स्टार्ट होता है। देन वी Okay. रीच ताबो एंड नाको। वहां पे ताबो नाको पहुंचने के बाद नेटवर्क नहीं आता है, रेस्ट ऑफ द पूरे ट्रिप में नेटवर्क नहीं आने वाला है। सो ऑन मंडे हो गया, मंडे दोपहर को मैंने ऑफिस में कॉल किया और मैंने बोला कि एक्चुअली ना ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आई है, आई थिंक मुझे डेंगू हुआ है, तो मुझे डॉक्टर ने जाने के लिए मना कर दिया है। एंड सेकेंड थिंग, आई वॉज कॉलिंग देम फ्रॉम सम अदर नंबर। ओके। और वो Oh. नंबर मेरा एमटीएनएल का नंबर था और वो किसी के पास था नहीं। सो आई टोल्ड देम आई एम कॉलिंग फ्रॉम माई मदर्स नंबर। ओके। सो मेरा जो सेल फोन है वो कमोड में चला गया, वॉशरूम में। ठीक है। तो मेरे फोन बनाने के लिए दिया है, सो आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन एनी कॉल। तो कुछ रहेगा तो प्लीज आप मुझे मेरी मॉम के नंबर पे कॉल करना, ओनली इफ देयर इज एनी इमरजेंसी। तो आई नोइंग दैट कि वो अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मेरा नेटवर्क वैसे भी बंद होने वाला था। सो दिस इज हाउ आई क्रॉस ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करके, एंड संडे वाज ऑन माय लाइक माय बर्थडे। सो संडे को मेरी बर्थडे कंप्लीट करके आई केम बैक टू मुंबई। सो इस तरीके से मैंने छुट्टी ली थी। And when you reached office with your beautiful travel tan, people would not have thought that you are red because of your dengue. They must have guessed you traveled. हाँ, तो क्या पता चलता है, ऑफिशियली इट वाज गुड, आई हैंडल्ड इट लाइक वेरी केयरफुली। तो दिस इज कॉल्ड लाइक पैशन, इफ यू हैव अ पैशन यू विल जस्ट फाइंड योर वेज हाउ टू गो, क्योंकि वो लाइफ में Right. जो मुझे चांस मिला था ना जाने का वहां पे, वो वापस नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस योर Right. टाइम। एवरी टाइम माइलस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज लाइफ में। तो दिस Beautiful. वाज माय चैलेंजिंग ट्रिप, कि किसी को झूठ बोल के और खुश रहना हो रही। एक होता है ना मन में बीइंग अ लॉयल पर्सन, एक होता है कि नहीं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, पैशन के सामने वो झूठ कुछ दिखाई नहीं देता। Right. No, also challenging. This was in terms of, figuring out your travel and your office and all. Something like life challenging, जैसे कोई like mountain means, you're like falling from the mountain or snow on top of you or something. ऐसा तो कुछ, have you not, encountered any of that? कैन यू रिपीट अगेन, आई मिस्ड समथिंग। I mean, challenging means any life-threatening travels have you done, like mountain से गिर गए या snow ऊपर आ गई या something like that. या ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ है, ऐसे काफी बार हुआ है, हर पॉइंट पे हुआ है। स्पीति वैली इज अ वेरी डेंजरस ट्रिप इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर राइडिंग। ठीक है, बट व्हेन यू आर वर्किंग लाइक गोइंग इन अ ग्रुप और लाइक दैट एंड एवरीबॉडी इज सपोर्टिव, आई मस्ट से माय टीम वाज वेरी सपोर्टिव। ऐसी टीम शायद किसी को मिलेगी भी नहीं। तो ऐसे हर Wow. दिन एवरी डे देयर वाज अ स्ट्रगल, और अपनी लिमिट्स क्रॉस करके हमारी बॉडी जवाब दे रही थी कि एनर्जी वाज टोटली जीरो, देन आल्सो वी आर राइडिंग। सो वी आर Hmm. राइडिंग अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कंप्लीटली। डार्क है, तो मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। लास्ट दिसंबर में आई वाज ऑन अ सोलो ट्रिप। कितने दिन की सोलो ट्रिप थी ये मुझे भी पता नहीं था। सो आई वेंट इट टू 33 डेज तक मैं कर पाया। एंड थर्टी Oh. थ्री डेज के बाद में मुझे लगा अभी मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो मम्मी मारेगी मेरे को। सो मुझे ना एक चीज कब से करनी थी, लेकिन किसी को बोली नहीं थी। मुझे रात को एकदम काले अंधेरे में, एकदम काला अंधेरा हो, कोई भी ना हो, आजू बाजू में पूरे माउंटेन्स हो, और मैं वॉक कर रहा हूँ, एंड वो ड्रीम मैंने अचीव किया। सो मुझे डर भी नहीं लग रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। सो एक थोड़ी सी पॉइंट में मेरे को डर लगा, बिकॉज मेरा सेलफोन बंद होने वाला था उस रात को, आधी रात को। मतलब Oh. शाम के टाइम पे Oh. एकदम काला था। सो Hmm. आई वॉज इन बीर, एंड मैं राजगुंडा गया हुआ था। राजगुंडा बीर से आगे है काफी, और वहां से जब ट्रैकिंग करके आते हैं ना, तो काफी लॉन्ग वे है वो आने का। तो मोस्टली लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं और दोपहर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मी लाइक बहुत सारे फोटोग्राफी करते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए आ रहा था मैं, और मुझे आते आते शाम को 7 बज गए थे वहां पे। सो वहां पे Okay. 5:45 को अंधेरा हो जाता है, और 5:45 से लेके मुझे समझ में आया कि मैं 7 सवा 7 लग जाएंगे मेरे को पहुंचने में। एंड इट वॉज फुल Right. डार्क, फुल डार्क। तो Okay. लकी मैं बस चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। और मैं जब भी वो लाइव कर रहा था, जब भी मैं था तभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया था, सब लोगों को पता था कि ये अकेले जा रहा है। एंड Okay. 5:45 के बाद में ना सेलफोन मेरे हाथ में था, ना मैं था, बस आसमान था काला, और उस दिन पे मून भी नहीं था। Oh.
मैंने जो मेरा जब सेल फोन बंद होने वाला था तो मैंने किसी को कॉल किया, वहां पे एक केयर टेकर थे वहां पे हॉस्टल के। उनको मैंने बोला, सूरज जी मेरा ना फोन बंद होने वाला है, आई थिंक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पे दो ट्रैक्टर दिख रहे हैं मुझे, मैं ट्रैक्टर में सो सकता हूँ आराम से। वो ओके ट्रैक्टर था, काफी सेफ था ट्रैक्टर, तो आई थॉट कि आई विल स्लीप देयर। तो ऐसा जरूरत ओके नहीं पड़ी। ही जस्ट टोल्ड मी फॉलो द पाथ, दैट्स इट। एंड आई फॉलोड द ओके। पाथ और मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सो दैट वाज द चैलेंजिंग ट्रिप फॉर मी। Wow, that is scary. That is वेरी absolutely स्केरी, scary. वेरी Right. स्केरी। And Kamal, tell us one of the most beautiful places. I mean, all the places I think that you travel to. अभी आपने आंख बंद कर ली, you're मैं almost गया। as if you're there. Like जैसे जन्नत है तो यही है, kind of a feeling. वो कौन सी थी? बताऊं कि सच्ची में ना? बताइए. बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू गो देयर, खराब कर देंगे लोग जगह वो। Honestly, Oh, at the bottom of my heart, that place name is Mud, MUD, that is in Spiti Valley. Like मुझे बोलते ही गूजबम्स आ जाते हैं उस जगह को। क्या व्यू है, लाइक जब व्हेन आई लुक अराउंड, मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं सक रहा हूँ एक्चुअली में। मुझे पता नहीं था वो जगह इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। जैसे ही मैं वहां गया, ब्लू फ्लावर्स, आई हैव वन पिक्चर देयर जहाँ पे मैं एक फ्लावर पकड़ के ऐसे रुका हूँ एंड आंखें बंद है मेरी, एंड ऊपर सर पे पटका बंधा हुआ है। वो फोटो उस टाइम पे मैंने डाली थी। मैनी पीपल कमेंटेड लाइक वो फोटो में कुछ दिख रहा है, कुछ देयर इज समथिंग इनसाइड दैट फोटो, फीलिंग है। और वो फीलिंग मेरी नहीं, वो गांव की फीलिंग है, वहां के लोगों की फीलिंग है। सो right. देयर वाज वन इंसिडेंस देयर। Yeah. मैं वहां पे लोग ना ग्रीन पीस की खेती करते हैं, ठीक है। ग्रीन Okay. पीस की दो लेडीज खेती कर रही थी और मैं उनको जाके बोला कि मुझे ना, बहुत ब्यूटीफुल थी दोनों। तो मैंने बोला मुझे आपका फोटो कैप्चर करना है। तो उनका माइंड ऐसे हो गया कि नहीं, मतलब दे वर इनसिक्योर, लाइक कि क्या है। देन लेटर आई गॉट टू Right. नो लाइक दोस पीपल गेट सम वाइब्स, वेरी गुड वाइब्स। लाइक Okay. जब फोटो निकालते हैं दे डोंट लाइक इट बिकॉज दे डोंट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम फोटो, फ्रॉम मोबाइल फोन। ओके, वो Okay. जगह इतनी शुद्ध है। लाइक ऑरा जो होता है ना, दे गेट टू नो व्हाट इज द ऑरा अराउंड अस। Wow. देयर ऑरा इज सो गुड। जब हमारा ऑरा उनके साथ टकराता है तो इन कंपैरिजन देयर ऑरा इज टू हाई देन आवर। कोई बिलीव करे ना करे, आई पर्सनली बिलीव इन एनर्जीज अ लॉट। एक चीज बोली जाती है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें फूड के बारे में बताता हूँ। इफ यू गो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवल ऑल्सो एंड फूड ऑल्सो। सो बोलते हैं ना, बचपन में एक चीज पढ़ी थी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मेरे That's बचपन right. में सवाल आता था कि यार ये एनर्जी आई कहाँ से, ओरिजिनल कहीं से तो एनर्जी आई होगी। तो Right. वॉट एवर राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, दैट इज नथिंग बट एन एनर्जी। तो ये Hmm. एनर्जी एक ही जगह से आई हुई है, दैट इज सन। दिस इज व्हाट आई Okay. फाउंड द आंसर फाइनली, कि सन से एनर्जी आई है Amazing. एंड देन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। सन से फूड में आती है, एंड फूड व्हाट वी ईट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग बिकॉज ऑफ द फूड ऑल्सो, एंड दैट इज ऑल्सो इंटरनल एनर्जी विच इज गॉड गिफ्टेड एवरी मॉर्निंग टू अस। Correct. So this is Beautiful. how it is. Okay. So tell us what is on your bucket list next? Where do you want to travel? Like, what is your dream bucket list? Can I tell you before I die what where I want to go? Yes. Okay. So bucket list में तो बहुत सारी हैं. I need to get trained myself. I am still 31. I will say I am still 31. मैं भी तो बच्चा ही हूँ, बड़ा बूढ़ा मत बनाओ. So I have to train myself so that I can reach till Mount Everest. That is my dream. पहले ड्रीम तो ये था कि मुझे सोलो माउंट एवरेस्ट करना है, लेकिन मुझे अभी देख के लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सोलो, because and I have a dream like I want to die there, not in a hospital. अरे बाप रे, ऐसे सब बातें नहीं करते. ठीक है। Okay. So tell us, this is a beautiful journey. I mean, you've taken us to all your places and back. So let's go to the time of your life. What made you steer towards the Sattvic lifestyle, Sattvic way of living? ओके, सो मैं जब भी पहले ट्रैवल करता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक अ टूरिस्ट। ओके, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। Hmm. जब आप टूरिस्ट की तरह ट्रैवल करते हो तो लेट मी टेल यू हाउ हाउ टूरिस्ट ट्रैवल्स। वो मैकमा ट्रिप पे जाते हैं, गो आईवीपी पे जाते हैं, ऑल दोस चैनल्स विच दे हैव।
प्रॉपरली होटल का रूम चाहिए। किसी फ्रेंड को Yeah. बोलोगे तो वो बोलेगा अरे नहीं, मुझे आरएसी की टिकट नहीं चाहिए, मुझे कंफर्म टिकट चाहिए। अरे Correct. आरएसी भी जबकि कंफर्म ही होती है, लेकिन फिर भी बोलेगा नहीं, मुझे प्रॉपर कंफर्म टिकट चाहिए। सो वो बुकिंग करेंगे, फिर प्रॉपर रूम बुकिंग करेंगे और अपने प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ टूरिस्ट। प्रॉपरली वो प्लानिंग के साथ जा रहा है, प्लानिंग के साथ उसका डेट भी फिक्स है आने का। लेकिन ट्रैवलर क्या करता है, वो एक एक स्टेप पे कल का क्या सोचना है, परसों का क्या सोचना है, वो कल सोचता है। एडवांस में पूरा प्लानिंग करके नहीं रखता है वो। बिकॉज वो जाने के बाद में आपको पता नहीं है, आज आप कश्मीर जा रहे हो तो कश्मीर में ठंड है कि गर्मी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। सो दे Right. नेवर प्लान। दैट इज कॉल्ड अ ट्रैवलिंग, प्रॉपर ट्रैवलर। सो Yeah. कमिंग टू दी सात्विक फूड की, पहले मैं हर जगह पे जाता था। जब दिल्ली गया तो दिल्ली की छोले पेटिस खाई मैंने, पराठे खाए। कभी साउथ में हाँ. जाते हैं केरला में, वहां पे इडली वड़े खाए, ये खाए। तो आई यूज टू ईट एवरीथिंग एट दैट टाइम। Yeah. एक्सेप्ट Yeah. नॉनवेज तो मेरा काफी कम था, लेकिन फिर भी मैं आई यूज टू ईट लॉट्स ऑफ नॉनवेज एट दैट टाइम। कहाँ पे फिश की Right. स्पेशलिटी है ये। खाने के बाद मैं रियलाइज की उस टाइम पे पता नहीं चलता है, व्हेन वी वर 20-25 ना, जब भी होते हैं तब लगता है कि अरे हाँ, मेरा दोस्त खा रहा है, ये ड्रिंक करता है, मैं भी पीता हूँ। ये हुक्का मार रहा है, चलो मैं भी हुक्का मारता हूँ, है ना। एवरीथिंग दे डू, वी जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड। हमको लगता है कि ये मेरे से 2 साल बड़ा है तो ही नोज बेटर देन मी। एक्चुअली में Yeah. डॉक्टर को भी, डॉक्टर्स आल्सो डोंट नो बेटर देन अस। बेटर देन Correct. अस मींस बेटर देन द पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग द नेचुरल लाइफस्टाइल। उनको Right. I can't hear you. I can't hear you. आवाज नहीं आ रही. Yeah, I can hear you. या नाउ कैन यू हियर I मी? can hear you. ओके, Yes. Yes. ओके। सो कमिंग That's टू द lifestyle. पॉइंट, या कमिंग टू द पॉइंट हियर। सो हमने कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी को अपना अपना नॉलेज होता है, एंड हर किसी को नेचर से लर्न करना चाहिए। दैट इज वॉट आई पर्सनली बिलीव। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। डॉक्टर्स भी हमारे अच्छे हैं, हमारे टीचर्स भी अच्छे हैं। इवन हमारे घर का जो एक सर्वेंट है, हमको लगता है कि वो Right. बहुत कम है, वो कोई भी कम नहीं है। ही नोज बेटर इन हिज एरिया। ओके, कुछ कुछ चीजें उसको भी Yeah. बताऊंगी जो हमें नहीं पता होंगी, विच मे बी लाइफ सेविंग ऑल्सो। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू रियली कन्वे कि always try to learn from nature. I am also here not to make you learn. I am here to just share the things. That's it. Like how I learned, now you try your own path. Everybody have different question papers, right? Correct. So that Absolutely. is how it is. Absolutely. Okay, Kamal, like I have traveled everywhere with my parents. Every year we went tourist, not traveling Okay. properly, सब वो करके and all. But like right now, I am absolutely zero in traveling, and I have this fatigue from just at the thought of traveling. So, what is the one advice that you can give to people like us who want to travel but can't? What is the one thing that you can say? ओके, एक चीज जो मैंने गर्ल्स में बहुत ज्यादा नोटिस करी है, पर्सनली मुझे भी ट्रैवल करते टाइम काफी सारे गर्ल्स से भी मेरी बातें हुई थी हैं। तो नॉट ओनली गर्ल्स, मुझे गाइस का तो स्पेशली ज्यादा पता नहीं है, लेकिन गर्ल्स को मैंने इमोशनली कम आउट हुए देखा है काफी। दे क्राई अलॉट, और काफी सारे गर्ल्स अपने ही जोन में रहती हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल में किसी के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आई सॉ इमोशंस कमिंग आउट व्हेन दे ट्रैवल। ओके, स्पेशली सोलो ट्रैवल। तो आप ये मत भूलो कि जब लड़कियां या लड़के भी, इवन लड़के भी रोते हैं, ठीक है, लड़कों का भी बहुत उनके मन में फीलिंग्स आती हैं जब सोलो ट्रैवल करते हैं, बिकॉज उनको पूरी आजादी मिल जाती है ना। सो वेन एवर एनी वन वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दैट फियर कि भाई ये फियर से निकलना है, पहले आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल करके देखो। जब आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फाइंड सम टाइम टू गो आउट अलोन इन द मार्केट एंड एक्सप्लोर मार्केट ऑल्सो एंड यूर सेल्फ ऑल्सो। और नेचर की चीजों को अच्छे से देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न व्हाट नेचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, अगर एक माउंटेन से एक वाटरफॉल हो रहा है तो आप उसको देखो, वो क्यों हो रहा है, वो ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है। देयर आर मैनी थिंग्स। बर्ड्स क्या कर रही हैं वहां पे, उसकी आवाज सुनो। आपको उसकी, अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो वी गो फॉर साउंड हीलिंग के लिए हम लोग जाते हैं, राइट? तो साउंड हीलिंग इज नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वेयर यू गेट दोस वॉइसेस एंड आपके ब्रेन में वो चीज अटक जाए और आप उस और हमें गूंज जाए। करेक्ट। तो व्हेन यू ट्रेवल टू नेचुरल प्लेसेस, और जब आप वहां पे चीजें रियलिटी में देख रहे हो, दैट शुड गो इनसाइड योर माइंड। तो पहले आप ग्रुप के साथ ट्रेवल करो,
ग्रुप के साथ ट्रैवल करने के टाइम फाइंड सम टाइम टू गो आउट, और वहां पे अपना सोलो ट्रैवल भी करो थोड़ा सा, एंड देन Right. स्लोली आपके जब मन से फियर निकल जाएगा, देन यू Yeah. गो आउट एंड नो आप सोलो ट्रैवल के लिए रेडी हो सकते हो. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, किसी ने कहा था कि बंजी जंपिंग क्यों करना है, एडवेंचरस क्यों करना है, रिवर राफ्टिंग क्यों करना है. दीज आर ना जस्ट अ टूल्स टू गेट आउट ऑफ योर फियर. ठीक है, Okay. these are tools, Okay. but these are created artificial tools. ठीक है, तो ये इसका सभी टूल्स का एक ही पर्पस है, टू कम आउट ऑफ योर फियर. तो यहाँ तो एक दो Okay. चांसेस है, या तो बंजी जंपिंग ट्राई करो, ठीक है, फियर Hmm. निकालो, या तो खुद को समझाओ. द बेटर ऑप्शन इज नॉन वायलेंट, राइट, खुद को समझाओ. एंड डूइंग बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग इज अगेन अ वायलेंट, यू आर लाइक इट्स अ वायलेंस टू योर बॉडी. सो चॉइस Okay. इज योर्स. Correct. Okay. So let's now come to your health enthusiasm. Yeah. How did you get into Satvik? And tell us, let's start your journey with the Satvik thing, your definition about the Satvik lifestyle. ओके, सो ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. मेरे लाइफ में तो बहुत खतरनाक नीचे से ऊपर आए हैं. एंड आई Hmm. डोंट थिंक सो किसी को नोटिसेबल भी होगा आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, Hmm. बट हर एक के मन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो मेरी लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे. एंड आई वाज ऑलवेज लाइक अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, कि मुझे भाई ये मोटिवेट करना है. किसी ने नीचे लिखा है, मियाँ शादी कर लो, उससे बड़ा खतरा कोई नहीं. ओके, सो राइट नाउ आई विल से कि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ आल्सो, फ्रॉम वेयर आई लर्न, एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ. मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है एक बार, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ, आई सेड यस आई एम हैप्पी इन माय लाइफ. सेकंड टाइम पूछता है तो भी मैं उसको हाँ बोलता हूँ, थर्ड टाइम पूछता है तो भी मैं उसको हाँ ही बोलता हूँ. ठीक है, लेकिन इफ वी आस्क समवन एल्स कि तुम खुश हो, तो वो एंड में ना ही बोले, कि बोलेगा नहीं, देयर इज समथिंग आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज बिकॉज ऑफ सम पास्ट हैपेंड और लाइक दैट. क्योंकि कोई ना कोई डिप्रेशन में होता ही है. डिप्रेशन इज अ मेजर इशू राइट नाउ nowadays. So Right. so coming to the Sattvic point of view, like suddenly I remember 2017, 25th of December, I remember this date. I was supposed to travel to Bangkok. Okay, लेकिन नहीं, मैं बैंकॉक गया भी अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी अच्छी प्लानिंग करी हुई थी, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप. ओके, Mm-hmm. तो जाने के एक दिन पहले मेरे फादर ने मुझे बताया कि नो, मुझे यहाँ पे आर्मपिट्स के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा यू नो छोटा सा, बस हार्ड लग रहा है. देयर वाज नो ट्यूमर आउटसाइड और नथिंग लाइक दैट, हार्ड लग रहा है. एंड देन मैंने बोला, अरे मतलब अभी कल तो मुझे बैंकॉक जाना है, तो एक काम करते हैं, आप बायोप्सी करवा लो, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है. एक हफ्ते में आ जाएगा रिपोर्ट, तब तक मैं बैंकॉक से होके आ जाऊंगा. मतलब इट वाज माय ट्रैवलर एक्चुअली. Mm-hmm. सो आने के बाद बायोप्सी में रिपोर्ट आया, और मुझे याद है 31 दिसंबर का डेट था, न्यू ईयर का नेक्स्ट डे न्यू ईयर था, और मेरे को 31 को रिपोर्ट शाम को 6 बजे आई. आई वॉज इन सम मॉल, और मॉल जब रिपोर्ट, ऐसे बड़ी रिपोर्ट थी, 3-4 पेज की रिपोर्ट थी, तो यू नो ऑलवेज यू फाइंड पॉजिटिव नेगेटिव आप चेक करते हो. तो आई रेड समवेयर नेगेटिव. ठीक है, मैंने घर पे फोन करके बोल दिया, पापा नेगेटिव है, टेंशन मत लो, सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा करके बोल दिया. तो माई फादर क्राइड ऑन अ कॉल. आई वॉज लाइक, रोए क्यों जब मैंने बता दिया. इसका मतलब वो इतना टेंशन में थे एक हफ्ते से, और एक हफ्ते से मैं यहाँ पे मजे कर रहा हूँ. मैंने बोला ओके ठीक है, मैंने फोन रख दिया. एंड माय फ्रेंड वाज देयर विद मी, ही वाज नोइंग अबाउट द होल केस, एंड आई टोल्ड हिम कि यार मैंने बता दो दिया पापा को, रिपोर्ट में नेगेटिव है, बट ना ही क्राइड. सो व्हाट शुड आई डू नाउ, मतलब मुझे टेंशन हो रही है, वो रोए क्यों जब खुशी का न्यूज है. मैंने रिपोर्ट कहीं गलत तो नहीं पढ़ ली. तो मैंने जब रिपोर्ट खोल के वापस से पढ़ी, एक्चुअली इट वाज नॉट नेगेटिव, इट वाज पॉजिटिव. एंड आई थॉट कि अभी मैं क्या करूं, मतलब मेरा माइंड नेगेटिव की तरफ ही था ना, कि इट शुड बी नेगेटिव इन अ रिपोर्ट. तो मैंने वही ढूंढा, वही पढ़ा और वही बताया. दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स. तो मैं बोला अभी मेरी हिम्मत नहीं होगी बताने की, लेट्स रीच होम फर्स्ट. एंड रात को हम 2-3 बजे घर पे पहुंचने वाले थे. पहुंचने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला, आप ही मेरे पापा को बता दो कि भाई ये प्रॉब्लम है. देन ही सेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ पकड़े हमने, बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब मिलके फाइट करेंगे, जो भी होगा सब साथ में करेंगे. देन बीइंग अ नॉर्मल गाय, नो कोई भी होगा मेरी जगह पे, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, आप भी होगे, आप क्या करोगे आपके घर पे जब ऐसा किस्सा होगा. जब आप नेचर में बिलीव भी करते हो, तो आप जाओगे मेडिकल के दुकान पे, आंवला जूस, करेला जूस, ये जूस वो जूस के सारे पैकेट्स लेके आओगे आप, है ना, और अच्छी अच्छी चीजें लेके आओगे प्रोटीन वाली, ये सब आके उनको खिलाओगे. कल से कचरा खाना बंद और ये सारा खाना चालू. तो मैंने पापा को Right. दिया. आई रिमेम्बर कि मैंने फ्रिज में उनका ऐसे बना के रखा था.
वो एक जूस का बॉटल था, उसके ऊपर ढक्कन निकाल के एक दिन करेला जूस पीना है, एक दिन बेलपत्र का जूस पीना है, एक दिन ये वो बहुत कुछ बना के दिया विथआउट एनी नॉलेज। मुझे कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। वो करने के बाद 10 दिन हो गए, मेरे पापा का ट्यूमर बढ़ गया और ज्यादा, एंड वी हैड टू सी अ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बोला इसका सर्जरी करना पड़ेगा, एंड रिपोर्ट में पॉजिटिव दिख रहा है बट इट्स नॉट कंफर्म्ड कि वो क्या है एग्जैक्टली exactly। तो कुछ दिख Right. भी नहीं रहा था, देयर वाज नथिंग, जस्ट अ हार्ड थिंग, दैट्स इट। तो डॉक्टर ने सर्जरी करके जब निकाला तो ये 1 kg का पूरा मांस निकला उसमें से, बिग मांस। Oh, इट वाज लाइक एन एनिमल सिटिंग लाइक इन एक बड़ी जार में, एक एनिमल बैठा था, मैंने देखा अपने आंखों से। और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, मुझे पूरा एक एक उसका नक्शा याद है, ठीक है, कि कैसा दिखता था वो। right. देन वो पूरा खाली हो गया, इसके बाद में पापा का रिकवरी होना चालू होना था, लेकिन रिकवरी हो नहीं रहा था काफी टाइम से। एंड देन वो दैट एनिमल वेंट फॉर अ बायोप्सी, आई विल कॉल दैट एज एन एनिमल ओनली, बिकॉज मुझे तब तक Hmm. पता नहीं था कि वो क्या है। देन वी Hmm. गॉट अ Hmm. रिपोर्ट दैट इट्स अ कैंसर। ओके, सो ये कैंसर है। एंड फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन हियर, मेरे फादर जो थे वो राधा स्वामी जी के फॉलोअर हैं, और उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, ऑलमोस्ट 2000 के बाद उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया। हेलो, एम आई हाँ, ऑडिबल? we lost you. हाँ, राधा ओके, स्वामी के फॉलोअर आप कहाँ हाँ, से थे? राधा स्वामी जी के फॉलोअर थे, और 2000 से उन्होंने ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया था, उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया था और अल्कोहल नहीं पिया था उन्होंने कभी भी, हम्म. ठीक है। एंड इसके बाद में भी ये चीज हुई। तो क्या हुआ था, जब वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बने, तो उनकी क्या गलतियां हुई थी कि उनकी जो नॉनवेज की जो चीजें थी वो चाइनीज में कन्वर्ट हो चुकी थी, ठीक है। वो आइसक्रीम ज्यादा खाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते थे, लेज वेफर वेफर पैकेट्स ये सब ज्यादा खाते थे, और Okay. हमेशा दोपहर का खाना माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाते थे। आई नो हिज टोटल कंप्लीट लाइफस्टाइल, ठीक है। हम्म. उसमें उनकी गलती है ही नहीं, गलती है हमारी। गलती है टीवी एडवर्टाइजमेंट्स की, जो यहाँ पे ये चीज प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट में चीजें बेच रहे हैं, दो वी नो माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। ओके, Right. माइक्रोवेव फूड को डेड कर देता है वो। तो जब डेड फूड से हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड? सो जब 20 साल से 18 ईयर से ऑलमोस्ट आप सेम चीज को, बॉडी को मार रहे हो, लाइक इट्स शूटिंग लाइक बुलेट मार रहे हो, तो एक दिन बॉडी गिरेगी। दिन रात एक ही रात में कैंसर डेवलप नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। Right. सो Right. उसके बाद में कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट हो गए फरवरी के मंथ में, मार्च में हुआ। एंड देन वी थॉट कि मेरे माय फादर बिकम कंप्लीट लीन, उनकी बॉडी से सब कुछ निकल चुका था, ही वाज लाइक एन स्केलेटन कंप्लीटली। हम्म. इसके बाद में हमने सोचा कि हम ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि और कीमो का डोज जाएगा तो ही विल बी नो मोर। ओके, सो अप्रैल का महीना हमने गैप दिया, और फिर गैप देने के बाद में मेरे फादर ने एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया था, बैंगलोर में एक मेडिसिन मिलती है कहीं पे। सो आई वेंट देयर, वहां पे मैं 24 आवर्स तक लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद में मुझे मेडिसिन मिली वहां पे वो। तो ठीक है, वो स्ट्रगल करके मैं आया, तो उनसे उनको काफी बेनिफिट हुआ था, लेकिन नॉट दैट ग्रेट। बट हमने फिर उसके बाद देखना चालू किया कि उनका वो ट्यूमर जो चला गया था वो रीग्रो होना स्टार्ट हो चुका था वापस से, Oh. मई के फर्स्ट वीक में। एंड देन वी अगेन वेंट टू द हिंदुजा हॉस्पिटल, डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज कंटिन्यू योर कीमोथेरेपी सेशन। देन ही अगेन स्टार्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली पहले उनका ये जो आर्म था पूरा सूज गया था हाथी के जैसा, फिर उनके पाँव भी सूजने चालू हो गए थे। तो माय फादर नेवर वांट टू बी डिपेंडेंट पर्सन ऑन एनीवन। उनका लाइफ में ऐसे अड़ियल डिसीजन था कि मुझे लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, और ना ही कभी डिपेंडेंट होना है, और वो भगवान को भी यही प्रे करते थे हमेशा। सो Yeah. जब उन्होंने देखा कि उनके पाँव सूज गए हैं, देन ही गेव अप कंप्लीटली, बोला अभी कुछ नहीं होगा, मतलब मैं बाथरूम नहीं जा सकता हूँ, और मुझे बाथरूम के लिए तुम्हें बुलाना पड़ता है, चलो मेरे साथ, दिस आई कांट अफोर्ड विद माई सेल्फ। सो उन्होंने अंदर मन से हार मान ली थी। एंड फाइनली देयर वाज अ लाइक लॉन्ग स्टोरी अगेन, सो फाइनली 29 मई पे उनका डेथ हो गया। सो डेथ होने के बाद उन्होंने सांस मेरे सामने ही छोड़ी। आई वॉज अलोन देयर इन हॉस्पिटल, मेरे साथ में कोई भी नहीं थे, मेरे मॉम को मैंने अपने घर भेज दिया था। सो वेरी बीइंग वेरी स्ट्रांग देयर, आई वॉज लुकिंग एट एवरी सिनेरियो। डॉक्टर भी बहुत कुछ डर रहे थे मुझे बताने के लिए, क्योंकि आई वॉज अलोन देयर। रात को मुझे 2 बजे अपने पापा को आखिरी टाइम देखने के लिए बोला, और आंखें हम्म. बंद किया उन्होंने। और मैंने वहां पे बहुत कुछ नोटिस किया, ऑरा नोटिस किया, एनर्जी नोटिस किया, ऐसी ऐसी चीजें नोटिस की कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं लकी था कि क्या था जो मुझे ये सब देखने को मिला, लेकिन ये चीज कभी लाइफ में जाएगी नहीं। एंड दिस नीड्स समथिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। मॉर्निंग में उठे, सब कुछ कार्यक्रम हुए 3-4 दिन तक, और उसके बाद में 20 दिन के बाद क्या लोग आएंगे जाएंगे, घर पे अभी क्या होगा?
व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ बैठ गया 5 मंथ्स के अंदर। कैंसर पेशेंट जो होता है ना वो 2-3 साल 4 साल 5 साल चलता है, लेकिन मैं बोलूंगा उन्होंने मुझे हमें तकलीफ नहीं देके गए, वो लोग सिर्फ 5 महीने रहे, 5 महीने में पूरी जिंदगी की स्टोरी बता के गए कि वो लाइफ क्या होती है। मेरे हम्म। पापा ही थे, वो मुझे बोलते थे कि बेटा जिंदगी में सब एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं सबको यही लगता होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहा है ट्रैवलिंग, पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से ट्रैवल कर पाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएंगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अभी शायद लोगों को मे बी एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस लोगे ना, भगवान ना करके किसी के लाइफ में इस तरीके का एक्सपीरियंस लेने को मिले, हम्म। मार खाने के बाद एक्सपीरियंस मिले ना मिले भगवान करके, तो या वो दिन आपको देखने को ना मिले, तो बेटर यही है कि हमें हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, लर्निंग एटीट्यूड फ्रॉम द पीपल, लर्निंग एटीट्यूड फ्रॉम द नेचर। और लर्निंग यस। जिस दिन आपने लर्निंग स्टॉप कर दी किसी से भी, राइट नाउ यू सेड यू आर हम्म। 50 एंड आई एम हाफ ऑफ योर एज राइट नाउ, सो अगर मैंने आपसे लर्निंग स्टॉप किया, आपने मुझसे बंद कर दी, तो वी विल नॉट ग्रो, वी यस। विल नॉट ग्रो। सबका एक डिफरेंट मेंटल ब्लॉकेजेस है। सो आने के यस। बाद में अभी देखो क्या होगा कि मई का महीना हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, me and my mom knows what happened and we were या behind to improve our health. There is something going on bad inside our body. So what we did, राइट। we started doing some workouts. सब लोग यही करेंगे, और सब लोग क्या करेंगे, रनिंग करना चालू करेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो हमने भी वही किया, मैराथन्स रन किए। इफ यू गो बैक ऑन माई प्रोफाइल तो आपको दिखेंगे उसी डेट्स के मैराथन के फोटोज है। एंड आई मस्ट थैंक्स टू माई फ्रेंड रॉडमैन डिसूजा, लाइक ही वॉज अ रनर एंड इसके लिए मैंने उनको फॉलो किया था। एंड तो मुझे उन्होंने पूरा गाइड किया कि हाउ टू रन एंड ऑल, तो मैंने वो 5-6 महीना फुल रनिंग चालू की। एंड सडनली नो होता है ना यूट्यूब में, जब आप यही सब चीजें देखते हो तो आपको सजेशंस आती हैं, एंड एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट सजेशन अबाउट माई मेंटर, I must say Subha Jain from Satvik Movement. Right now she is Subha Saraf. Big namaste to her, seriously. तो उन्होंने लाइफ चेंज कर दी कम्प्लीटली। जैसे ही उनके वीडियोस आए सामने मेरे, और मैंने वीडियोस देखे, तो मुझे जितने क्वेश्चंस इतने टाइम में क्रिएट हुए थे मेरे माइंड में, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिल गए। एंड यू कांट राइट। बिलीव, अगर कोई कोई भी बंदा उनके वीडियोस देखेगा ना, तो नॉर्मली कोई बोलेगा हाँ ठीक है पता है ये तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ये चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी हमें। चीजें नेवर। सुनने और करने में बहुत फर्क होता है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, मैंने एक चीज उस टाइम पे ठानी थी, आई वॉज ऑल्सो नॉट अ गुड गाय, तो मैंने भी चीज मानी थी कि अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, देयर हैज टू बी समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट। टुडे वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। ये जो मैं सेशन है बहुत अपने दिल से बात कर रहा हूँ, देयर इज नो स्क्रिप्ट रिटन हियर एंड देयर, आई एम टॉकिंग नॉट फ्रॉम देयर, आई एम टॉकिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। So या this is with lots of emotions and thanks to like for support of everyone here. तो भगवान ना करके किसी के लाइफ में इस तरीके का एक्सपीरियंस आए, इससे अच्छा तो ये है कि आप अपना लर्निंग एटीट्यूड रखें। देन व्हाट राइट। हैपेंड, मैंने वो वीडियोस देखे, वीडियोस देखने के बाद में मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो माइंड में चीजें थी। फरवरी के महीने से मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना। द फर्स्ट थिंग आई टुक इन द मॉर्निंग लाइक एन एशगॉट जूस, उन्होंने रिकमेंड किया था, मैंने वो या स्टार्ट किया। सिर्फ वही राइट। और कुछ नहीं, और बाकी सब नॉर्मली जैसे खाता पीता था ना सब वही। नॉनवेज बंद ओके। कर दिया, नॉनवेज ग्रेजुअली बंद कर दिया मैंने उसके बाद। ओके। और चाय कॉफी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट। ऑफिस में कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करते हुए चाय कॉफी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब भी स्विच किया ना एश गॉड की तरफ, तो अपने आप चाय कॉफी भी बंद हो गया, बिकॉज मेरी एनर्जी राइट। लेवल्स हाई रहती थी उस टाइम पे। तो मैंने बहुत विश्वास के साथ वो ड्रिंक किया। देयर वाज सम मेंटल एंड माइंड कनेक्शन एंड हार्ट का कनेक्शन था वो ड्रिंक की तरफ। So whenever राइट। you eat any fruit or anything, whatever food you eat, if you do some mindful eating, वो होना ही है, वो चमत्कार दिखाएगा। करेक्ट। आपने कल इस मेरे बाजू वाली ये पी रही है, तो कल उसको कॉपी करके मैं भी पी रहा हूँ, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट unless you don't understand what is going on with you. Correct. So I started with You're that. talking about, yeah, you're talking about chai coffee. It took me 3 days, same as seeing her videos and her seminars. 3 days, I went through major headache and then probably withdrawal symptoms, and then I'm clean. I have not had chai coffee since 2 years now. So, and I'm good. Yeah, because those are stimulants. So we will talk more on this in later in this Yes. session, you know. Yeah. सो कमिंग टू दी, इसके बाद मेरी लाइफ बस चेंज होती गई, एंड मैंने मई के मंथ में उनका वर्कशॉप 2019 19 मई 2019 में मैंने उनका सेशन अटेंड किया, लाइव सेशन।
जबकि मेरे को वीडियोस में सब कुछ पता था, लेकिन मुझे Yeah. उनसे मिलना था और मुझे Right. लाइव एक्सपीरियंस लेना था। एंड वर्कशॉप का उनका चार्जेस उस टाइम पे 3500 था, जो कि मैंने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा है, लाइक 3500 मेरे लिए ज्यादा था, लाइक ये बहुत है। फिर मैंने पूछा आप मेरी सैलरी कितनी है, अच्छा उसमें से मैंने कंपेयर किया तो मैंने बोला कि पब्बा के टाइम पे तो मैंने आई पेड सो मच ऑफ अमाउंट, और अभी जब Hmm. मेरी खुद की हेल्थ के बारे में नॉलेज लेने की जब बारी आती है, वो भी अपने गुरु से, जिसे इतना फायदा हो चुका है ऑलरेडी, तो Yeah. व्हाई आई एम Yeah. थिंकिंग वहां जाने के बाद नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड शी इज गिविंग अस अ फूड ऑल्सो, एंड Right. इन सब चीजों से भी इंपॉर्टेंट है नॉलेज मिलेगा और उनसे मिलने को मिलेगा, जिसकी वजह से मेरे 2-3 महीने में चेंज आई है। जिनके सवालों के जवाब इतने टाइम से नहीं मिले, तो अभी मिलने चाहिए यहाँ पे। Correct. उनसे मिलने के बाद Absolutely. आई विल बी कंप्लीट होलसम, आई विल बी टोटली मोटिवेटेड टू प्रोसीड माई लाइफ। लेकिन एक ही चीज है कि Absolutely. या आई अंडरस्टैंड दैट ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देर आर मैनी न्यूट्रिशन डाइटिशियन हैं, तो वो लोग आपको सामने आके क्लियरली बोलते हैं अरे ग्रीन जूस पियो, अरे ऐसा पियो वैसा हो जाएगा, बट रिमेंबर दैट दे हैव टू बी वेरी मच नो क्रिस्टल क्लियर विथ वॉट एवर दे आर सेइंग टू यू। उनका काम ही ये Right. है कि आपके दिमाग में बात डालना, और आपके दिमाग में Hmm. बात आराम से चली जाती है, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इनफ लाइक दैट। सो इतना उल्लू मत बनो, फूल मत हो जाओ किसी के बातों में, खुद का दिमाग Right. यूज करो। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे नॉनवेज खाना है, तो नॉनवेज खाने के लिए एक बकरी को मारना पड़ेगा, तो मारना ही पड़ेगा। दिस Correct. मेक्स अ लॉजिक। मैं बोलूंगा उसको मत देखो, यहाँ पे आप खाना खाओ, नॉनवेज खाओ, मैं बना के दूंगा आपको। उसको टेस्टी बनाने का है ना, तो मैं नमक मिर्ची जो भी आप बोलो सब डाल के दूंगा, स्पाइसी क्रंची एवरीथिंग आई विल मेक यू। ऊपर Right. से मस्त कराऊंगा, अच्छा फोटोग्राफी करूंगा, आई विल इन्फ्लुएंस योर माइंड। सो दैट्स इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हमारा जो Yeah. माइंड है ना, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत इजीली। तो मैं ये भी बोलूंगा, आप Absolutely. मेरी बातों पे भी विश्वास ना करो, किसी के भी बातों पे विश्वास ना करो, चीजों को समझो और अडेप्ट करो, सच्चाई को अडेप्ट Correct. करो। दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ राइट नाउ। So tell us, this is so beautiful, and like you said, to meet Subha was like a different experience. I met her in February 2019, and yes, मैंने भी उसके उनके सारे videos देखे थे. But to meet her रूबरू and listen to what she had to say about the Sattvic lifestyle is very good. Anyways, let's continue. Sattvic and veganism, is it the same thing? You know, like for the beneficial, benefit of our viewers, let's differentiate for them. नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वीगन एंड सात्विक। ठीक है, सात्विक सात्विक का कहना कैसा है कि आज मैं जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, मतलब एनीथिंग शुड बी नॉन वायलेंट। ठीक है, ऐसी कोई सी चीज मैं ना सोचूं और ना देखूं जिससे मुझे डिस्टरबेंस हो। तो आप बोलेंगे अरे मैं क्या करूं, मेरे मन में थॉट्स आते हैं, ऐसे गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, तो वो भी नहीं आने चाहिए। तो वो नहीं आने Right. के लिए व्हाट फूड यू नीड टू, फूड इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस केस। तो Okay. आपको कौन सा फूड खाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं ना आप, यू आर व्हाट यू ईट। So true. हाँ, दिस इज वेरी ट्रू। अगर ये खाली आप कोई कोट सुन के अपने फ्रिज में लगा देता है, फ्रिज के डोर पे, तो ऐसा नहीं है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, और प्लीज आप एक्सपीरियंस करके देखो। यहाँ पे जितने भी मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स होंगे, दे नो अबाउट मी हाउ आई वाज बिफोर, एंड उन लोगों ने ही मुझे आके बोला कि यार बहुत चेंज है, और मुझे ही पता नहीं था कि मेरे अंदर चेंज है। सो आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा। इसका जवाब वर्ड्स में नहीं दिया जा सकता, फील किया जा सकता है। Right. सो कमिंग टू द Right. पॉइंट, वीगन और सात्विक में क्या डिफरेंस है। लाइक वीगन में पीपल हैव एनीथिंग, जो पैकेट फूड आता है वो भी खाते हैं, एंड जैसे कि ऑयल खाते हैं, वो लोग सब कुछ खाते हैं। और सिर्फ वो लोग एनीथिंग विच इज कमिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल्स इंक्लूडिंग हनी, दे डोंट ईट। लेकिन देर आर फ्यू vegan people who eat honey also. So maybe they don't have the proper definition of the vegan. Vegan means anything plant based which is coming from plants, भले वो पैकेज फूड क्यों ना हो, वो भी चलता है उनको। लेकिन इन सात्विक वी डोंट ईट एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज। नॉर्मली इंडस्ट्री से आपको नहीं करना है, लेकिन आज के जमाने में वी कैन नॉट बी 100% सात्विक। ओके, सो देर आर फ्यू थिंग्स वी आर स्टिल कंज्यूमिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री। लाइक आप बोलो कि चावल का पैकेट आ रहा है, राइट, ब्राउन राइस का पैकेट आ रहा है, तो वो तो इंडस्ट्री से ही आ रहा है ना। So there are very few minimum things which are not in our control and which we have to buy from the market. So उसका आप रेशियो कम कर दो और मैक्सिमम रेशियो कर दो कि जो प्लांट से, सब्जी मंडी से हमारा जो खाना आता है, आप वो खाएं।
इसमें आप ऑयल नहीं खा सकते क्योंकि ऑयल प्रोसेस होके आता है. So we have different list of the food items which are not allowed in the sattvic, which are not defined as a sattvic. Okay. So we have a question. So what about milk? Is that good or bad? See, as the milk is coming from the animals, so I will say in sattvic we don't recommend milk. अभी क्वेश्चन ये आएगा, सब लोग मुझे यही बोलेंगे, मार डालेंगे मेरे को, कह रहे सिंधी में एक पोयम थी बचपन में जो पढ़ाई गई थी. आई वुड लाइक टू टेल यू. वो नहीं, जो खीर पिए सो वीर थिए दंत जोर वठन खणी सुरना थियन. इसका मीनिंग ये है कि जो दूध पिएगा वो ही स्ट्रांग बनेगा और उसके दांत चमकेंगे. तो बचपन में हमको पढ़ाया गया था, उस टाइम भी वो बात सही भी थी, आज भी सही है. आई अग्री दैट. लेकिन आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो काफी डिफरेंट है. ठीक है, पहले की जो लाइफस्टाइल थी उस टाइम पे सेलफोन्स नहीं थे, उस टाइम पे हम स्ट्रगल करते थे. इफ यू रिमेम्बर, हम स्कूल जाने के लिए पैदल जाते थे, राइट? Yes. हम लोग Yes. हमारे पास, सबके पास व्हीकल नहीं था. उस टाइम लड़कियां गाड़ी नहीं चलाती थी. इंडियन कल्चर वॉज वेरी डिफरेंट. आज 15 ईयर्स का बच्चा भी गाड़ी चलाता है रास्ते पे. ओके, Right. ही डोंट रन, ही डोंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज. फिर उसको रिप्लेस करने के लिए आज हर कॉम्प्लेक्स में एक गार्डन बनाया जाता है, एक प्लेग्राउंड बनाया जाता है. दीज आर द अल्टरनेट्स. तो घुमा फिरा के सारी बातें एक ही हैं. यहाँ तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो आप वॉकिंग करके भेजो, यहाँ तो उसको रिक्शा में भेजो. अल्टरनेटली शाम को उसको बोलो 1 घंटा तुम पार्क में खेलो कूदो. तो बात तो एक ही हो गई घुमा फिरा के. Correct. सो कहने का मतलब, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो आज की हमारी लाइफस्टाइल में स्ट्रगल काफी कम है, काफी कम है. ठीक है, तो हम अगर जो मिल्क पीते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली. The first thing is this thing. If you get a pure milk also, then also your body may not be capable to digest that. और यही सबसे बड़ा रीजन है बीमारियां पैदा करने का, क्योंकि जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो अंदर ही पड़ा रहेगा और फर्मेंट होते रहेगा, बैक्टीरिया वायरसेस आते रहेंगे और कोई ना कोई बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा. किसी के बॉडी में ट्यूमर हो जाएगा, किसी के बॉडी में कैंसर हो जाएगा, किसी को हाई बीपी हो जाएगा, किसी को हार्ट डिजीज हो जाएगा. सबको अलग अलग बीमारियां होंगी क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट सीड से ग्रो हुई है. Correct. Like that. So first point is that. Second point is, आज जब कोई लेडी बच्चा देती है तो कितने टाइम तक दूध दे सकती है बच्चे को? एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है उनका. तो जब गाय को भी बच्चा होता है तो वो भी फिक्स टाइम तक, 3 साल तक ही वो दूध देता है, लाइफ टाइम में दूध देता है. लेकिन Right. मुझे आज बताओ, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे कितने सारे रास्ते पे लोग घूम रहे हैं, तो किसने आज एक पूरे दिन में मिल्क नहीं पिया होगा? सब लोग मिल्क पीते हैं, इन फॉर्म ऑफ पेस्ट्रीज, इन फॉर्म ऑफ केक्स, इन फॉर्म ऑफ बटर, चीज, हर चीज में. और आज Yes. ऐसा मुझे कोई बिजनेस बताओ जहां पे मिल्क का यूज नहीं हो रहा है. Hmm. अगर Yeah. मिल्क नहीं होता तो आज कौन सा बिजनेस नहीं होता. आपको चीज Yeah. सैंडविच नहीं मिलेगी, चीज पाव भाजी नहीं मिलेगी आपको, पिज्जा के तो सारे दुकान ही बंद हो जाएंगे, है ना? आइसक्रीम, चीज, पनीर, सब कुछ बंद हो जाएगा. तो मतलब आधी प्रॉपर्टीज तो यहाँ खत्म हो जाएंगी, लोग हैं रास्ते पे आ जाएंगे. सो ये सारी Right. बिजनेस पे अफेक्ट होगा. अभी ये बिजनेस पे अफेक्ट ना हो, इसके लिए गाय को बोलेंगे तेरे को तो दूध देना ही है, तुम नहीं दे सकती हो तो भी तेरे को देना है दूध. Yeah. तो फॉर Yeah. दैट व्हाट दे डू, उसको इंजेक्शन Yeah. मारते हैं वो लोग. वो सिर्फ 100 Right. रुपीज की इंजेक्शन आती है और वो 100 रुपीज की इसको इंजेक्शन मारते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दूध देती है. एंड दैट इज व्हाट वी डोंट लाइक. दैट इज व्हाट वी डोंट लाइक. उनको टॉर्चर होता है और उनकी लाइफ, भगवान ने कहा कि आपके जैसे हो जाए या हमारी लाइफ उनके जैसे ना हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए. Yeah. So Correct. these are the main reasons. Absolutely. So, Pawa, you have a question that you have a problem with your right lung. Now you have diabetes and high blood pressure, and can Sattvic movement have some suggestions? So, Pawa, just hold that thought. We have a lot of questions regarding all of this. So, Kamal, we'll take one of the other, one after the other, and then you can get back to this because he is going to cover a lot of ground. Kamal, since we put up your promo, we had a lot of questions. So I'm going to keep asking you those, and then we can this thing. Sure. So आपने ये बताया. So like you said now we talked about milk. So normally क्या होता है, animal products नहीं खाएंगे, like you said natural products खाएंगे. So what happens to the protein component? फिर protein कहाँ से? Okay, so if everybody who seen my mentors like Sattvic Movements videos, तो उसमें बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स बताए गए हैं. सो यू कैन स्विच टू दी प्लांट बेस्ड मिल्क्स. तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का रिप्लेसमेंट है दैट इज अ कोकोनट मिल्क. ठीक है, आप घर पे खुद का कोकोनट का मिल्क बनाएं तो दैट इज द रिप्लेसमेंट. सेकंड, आप पीनट मिल्क भी निकाल सकते हैं, पीनट की कर्ड बना सकते हैं उससे. एंड उसके बाद में आलमंड मिल्क बनता है, कैश्यूज मिल्क बनता है.
जस्ट डोंट बिलीव वॉट एवर इज टॉट टू यू बिफोर। ठीक है, लोग आपको बोलेंगे अरे एक काम करो, आप जब बादाम खाते हो तो फिर वो ज्यादा मत खाओ, काफी हैवी होते हैं, दैट इज व्हाई दोस नट्स आर कॉल्ड ड्राई नट्स, तो आपको Okay. प्रॉब्लम आ जाएगी। एक बात दिमाग में सबको रखना चाहिए कि जब भी कोई आपको फियर पैदा करता है ना आपकी बॉडी में, आपके मन में, वहां से उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर Absolutely. True. फियर इज अ मेन थिंग, आज कोई भी मेरे को आप एडवर्टाइजमेंट बताओ वो फियर के बेसिस पे ही होती है। और दूसरा बात फियर का, एंड सेकंड चीज, अगर उनको किसी भी प्रोडक्ट को प्रोमो करना है, एग्जांपल एक टूथपेस्ट का प्रोमो करना है, तो वो डॉक्टर को लेके आएगा, डॉक्टर को बोलेगा आप दिखाओ टूथपेस्ट, तो उनको ज्यादा बिलीव होगा। सो दे आर ट्रेन्ड इनफ टू मेक योर माइंड इन्फ्लुएंस कंप्लीटली, और हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। नाउ मैं आपको कल बोलूं पत्ता गोभी ले लो, पत्ता गोभी ले लो, तो ये बोलेगा हाँ ठीक है। पत्ता गोभी खाओगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें ये होता है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, बोलेगा मत खाओ, आपको एसिडिटी हो जाएगी, आपको ब्लोटिंग हो जाएगा, डॉक्टर आके ये बोलेगा, तो हाउ विल यू बिलीव? तो आपके मन में फियर पैदा कर रहे हैं। नेचर की चीजों पे ब्लेम ना करो, नेचर की चीज आपको कभी खराब नहीं करेगी। आपकी बॉडी नेचुरल बनी हुई है 5 एलिमेंट से, राइट? 5 एलिमेंट्स 5 फिंगर्स पे काउंट होते हैं प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई यू हैव 5 फिंगर्स इन योर हैंड, ये याद रखना। अब 5 उंगलियों से जब आपने हाथों से खाना खाते हो ना, ये 5 एलिमेंट्स आपके बॉडी में जाते हैं। इन 5 उंगलियों में बहुत शक्ति है, एक उंगली के बिना ये 4 उंगलियां काम नहीं कर पाएंगी, ये 5 उंगलियां साथ में ही रहेंगी। इसके लिए आपको वो खाना खाना है जो इन 5 तत्वों का बना हुआ। 5 तत्व कौन से हैं? सबको पता है, अर्थ है, लाइक मड है, मिट्टी है, एयर है, फायर है, स्पेस एलिमेंट है, एंड वाटर एलिमेंट है। सो पॉइंट में यहाँ पे यही आ रहा था कि 5 एलिमेंट का बॉडी में बैलेंस होना चाहिए। जब हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट बैलेंस रहेंगे तो हमारे कोई बीमारी हमें कभी नहीं होगी। Right. So beautiful. So we were talking about these so protein यही जो आपने बताया. So we are not okay. Just before I get to the next question, I'm not sure ये live 1 घंटे के बाद will it be on? So what I'm telling all the viewers, in case we lose this, I will come back live with Kamal and then we can continue this again. So Yeah, I'm please, going to continue this live and then please join us back. yeah, please do not forget to save the live. Yeah. I'll just upload it and then we can, yeah. Sure. Okay, so what about, so the protein आपने ये बताया, what about soya protein? अच्छा, soybean products are like many people are confused about whether we should have tofu or any other soya products या soya milk जो market में मिल रहा है. I personally suggest will tell you one thing in a one line, that soybean is very difficult for our body to digest in today's life, in today's modern life. पहले के जमाने में सोयाबीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता था, तब की लाइफस्टाइल डिफरेंट थी। तो आप फिर भी सोयाबीन कंसीडर आपको खाना है तो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग आउट थ्रू आउट द डे एटलीस्ट फॉर 3 hours. Okay, the first condition is that your body is working out for 3 hours. Second thing is सोयाबीन का अगर कुछ भी बनाना है तो आप घर पे बनाएं। सॉरी, तो आप घर पे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई भी आप घर पे सोयाबीन का मिल्क निकालें, और एनी होममेड लाइक टोफू भी बनाने का है तो आप घर पे बनाएं, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट्स में देयर आर प्रिजर्वेटिव्स। एंड कमिंग टू द वेट लिफ्टिंग के बारे में, जिनको प्रोटीन का है, तो वी विल कम टू दैट पॉइंट आई थिंक मे बी लेटर एट दिस सेशन। Yeah. What about salt? Is that considered sattvic? Okay, now salt is a very big topic right now. ये सब लोग को क्वेश्चन ये है कि क्या है सॉल्ट, तो मिलता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा उसके पहले, आप किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे आप बुफे खाते हो, राइट? तो आपको अच्छा लगता है वो बुफे? नहीं। अच्छा, खाना तो अच्छा लगता है, कुछ तो अच्छा लगता होगा बुफे में से। हाँ, अच्छा लगता है, उसमें सब मिल्क एंड चीज और वो सब होता है, इसलिए। ठीक है, मैं सॉल्ट निकाल दूं उसमें से तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, राइट? तो क्यों भगवान ने ऐसा, क्यों भगवान ने किसी को दिमाग में डाला था क्या कि हर सब्जी में सॉल्ट डालना ही है तो ही अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो उन्होंने भगवान ने नेचुरली हमारा टेस्ट बर्ड भी कैसे बनाया ना, हमारा माइंड वर्सेटाइल बनाया है। तुम्हें जो सोचना है आप सोच सकते हो, आपका मन भी वैसा बना है, तुम जो मन करो वो मन कर सकते हो तुम अपने हिसाब से। सो इट्स एवरीथिंग वर्सेटाइल। सेम वे अवर टेस्ट बर्ड्स आर आल्सो वर्सेटाइल। आप जो एरिया में जो खाना खाते हो, आपके टेस्ट बर्ड्स उसी एरिया के हिसाब से उसी तरीके से काम करते हैं। अभी इन थाईलैंड पीपल ईट डिफरेंट फूड, राइट? कोई फिश ऑयल में खाना खाते हैं, कोई सिर्फ कोकोनट ऑयल में खाना खाते हैं, तो महाराष्ट्रियन लोगों को नहीं पसंद आता है,
लाइक इन महाराष्ट्र पीपल डोंट लाइक दैट फूड. सो हर एक का Yeah. टेस्ट बड्स डिफरेंट है, वर्सेटाइल है काफी. सो सेम वे से हमारी जो सब्जियां हैं जो कुदरत ने हमको दी हैं, लाइक वो ऐसी दी गई हैं कि उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही खाना है, रॉ खाना है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट. उसके बाद कैसा हो गया, ये रॉ खाना वो खाते थे जो पहले के जमाने में जिनकी बॉडी थी ना, जब उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी, तो उनकी बॉडी रॉ खाना इजीली डाइजेस्ट कर पाती थी विदाउट एनी स्पाइस एंड विदाउट एनी सॉल्ट. मान लो Yeah. कि आपको यहाँ पे कोई जख्म हो गया और मैं आपको ऊपर से नमक डाल दूं, नमक डालने के बाद क्या होगा, जलेगा ना वो. तो हमारे बॉडी के इनसाइड भी अंदर वियर एंड टीयर्स होते हैं. जब हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नमक खाते हैं ना, तो अंदर भी इशू क्रिएट होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, Oh वो my बॉडी के God. अंदर है. देयर इज बिग एनर्जी सिटिंग इनसाइड अवर बॉडी, वो उसका टेक केयर कर लेती है. लेकिन आपको आज पता नहीं चलेगा, आफ्टर सम टाइम द न्यू जो नया बीमारी का नाम लाया गया है, ब्लड प्रेशर. आपको ब्लड प्रेशर के सामने आ जाएगा कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का काफी इशू है. योर हार्ट हैज टू वर्क अ लॉट फॉर द ब्लड प्रेशर टू मेंटेन द ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी. सो Correct. हियर सॉल्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो सॉल्ट को अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि नो आयोडीन ज्यादा होना चाहिए, या आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है, फिर उसके डायग्नोसिस Yeah. होते हैं, उनकी टेस्ट होती है. सो देयर आर डिफरेंट वे Yeah. टू अर्न मनी फ्रॉम दैट. So Yeah. a good amount of, like, if you really want an oil, तो if you really want a salt, तो rock salt is a very good and human friendly. ठीक है. Yes. तो आप कोई भी रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट ले सकते हैं अगर डालने की Yeah. जरूरत पड़े. इन केस इफ यू आर हैविंग, कभी भी आप सब्जी जब बनाते हो तो सॉल्ट को गर्म नहीं करना होता है हमें. सब्जी जब बन जाए उसके बाद सॉल्ट डालना होता है उसके ऊपर, और फिर Okay. आप चम्मच से मिक्स करो और आप नॉर्मल खा सकते हो. सो प्लीज मेक श्योर जब भी आप सब्जी बनाए तो उसमें वाइल फ्लेम इज ऑन, यू शुड नॉट ऐड सॉल्ट टू इट. नेक्स्ट थिंग, जब भी आप सैलेड खा रहे हो तो कोशिश करके उसको रॉ खाएं. लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे रॉ पसंद नहीं आएगा, मुझे सॉल्ट डालना ही पड़ेगा, तो जब आप खाने वाले हो उसके ठीक तुरंत ही आप सॉल्ट डालें और तुरंत खा जाएं. क्योंकि अगर हम लोग पहले ही सॉल्ट डाल के रखेंगे ना, तो वो पानी छोड़ना चालू हो जाएगा. Yeah. राइट. तो क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं आपका ब्लड में आपकी बॉडी से निकालता हूं और बोलूं वो ब्लड आप पी जाओ, तो आपको एनर्जी आएगी क्या? नहीं आएगी. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. जब हम नमक पुट करते हैं ना, उसके ऊपर नमक डालते हैं ना सलाद के ऊपर, तो वो अपना ब्लड निकालता है. वो पानी है जिसको बचपन में हम लोग ऐसे पीते थे, अच्छा लगता था काफी ज्यादा वो पानी. सो वो पानी Yeah. उसी के बराबर हो गया. उनका ब्लड निकाल के वही आप पी रहे हो और बोलते हो मेरे को एनर्जी आ जाएगी. सो इट्स नॉट लाइक दैट. उनको आप खराब मत करो. सो सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ, और रॉक सॉल्ट इज अ प्रेफरेबल ऑप्शन. Okay. Kamal, do you want to take this question? Priya Tatar says, how can we overcome the deficiency of vitamin B12 in the Sattvic lifestyle? Yeah, so Priya Tatarji is already in one of our groups, and I already saw someone replied about B12 deficiency there. So Priya ji, I never commented against to that comment. So please be sure that we follow Sattvic lifestyle, and we do not recommend any dairy products for the B12 deficiencies. And as we know that we are adults right now, right? And we are grown up properly. We are fully grown adults. तो हमारी बॉडी को जो B12 की डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो डेयरी प्रोडक्ट से लोग लेते हैं, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रूट वेजिटेबल से भी पूरी हो जाती है. आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हद से ज्यादा बीमारियां जो पैदा होती हैं वो हमारे टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से पैदा होती हैं. Right. So B12 normally is found in the root vegetables like carrot, और बीट रूट होता है, कैरेट होता है. अभी आज मूली का सीजन था, राइट? तो Yeah. हाँ, रेडिश में अवेलेबल है. तो आप ये सारी सब्जियां मिस ना करें. जो भी सीजनल सब्जियां आती हैं वो आपको खानी चाहिए सारी. और आप बोलते हो मैं वो सारी, इट्स नथिंग बट अ बैक्टीरिया, डर्ट है वो B12. ओके, एंड दैट Yeah. डर्ट वी नीड इट, राइट? तो हम लोग जब भी कैरेट्स लेके आते हैं उसको वॉश करते हैं. वॉश करने के बाद हमको लगता है कि डर्ट निकल गया, तो अभी तो बचा ही नहीं. तो कभी भी आप जूसिंग करें तो कैरेट के छिलके को काटे मत, उसको पील ऑफ नहीं करें, प्रॉपर्ली वॉश करें. अगर फिर भी आपको डर लगता है तो उनको वार्म वाटर में थोड़ा धो लें और उसका डायरेक्टली विथ पील, जैसे आलू हो गया, आलू की स्किन में भी B12 विटामिन होता है. सो ये सब चीजें आप कंज्यूम करें, रूट वेजिटेबल्स विथ स्किन, और फिर आपको ये इसमें इंप्रूवमेंट होना डेफिनेटली दिख जाएगा. और काफी सारे लोगों को इंप्रूवमेंट हुआ भी है इससे. Correct. Kamal, so do you want to, before our live, I don't know if whether it will go or not because अभी एक घंटा हो गया है. Yeah. You want to answer Pava's question about her lung problem, and she said it is not high BP. She has
hemoglobin, she or he, I'm not sure. So hemoglobin is 17 and he has diabetes, he or she, and about the lungs. So can that be fixed with Okay, the sattvic so lifestyle? it is coming under the काफी serious disease के ये point है and काफी personal question है, so I would like to take it personally, so I would suggest just DM me and we will revert it back. That'll be great. That'll be Yeah, great. Okay, yeah. so let's move to the next one. So we've covered ground about salt. Now, what about sugar? Okay. That's like the biggest devil. ओके मैं इसका जवाब थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा हुआ आपने उसके मुंह में सीधा शुगर डाल दी क्या? चलो मान लो डाल दिया आपने, हाउ विल ही रिएक्ट? हाउ विल ही रिएक्ट? वो I'm बहुत not ऐसा sure. करेगा, वो ऐसा करेगा, ठीक है, कि क्या खिला दिया मेरे को, राइट? तो लुक एट द रिएक्शन ऑफ दैट बच्चा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हम लोग अपने आप को वॉयलेंस में ला लेते हैं, दैट्स ओके, वी विल अंडरस्टैंड, वी विल टेक इट, कोई भी टेस्ट आओ। तो आजकल देखा है आपने काफी सारे ऐसे जब कुछ आइसक्रीम से मुंह में डालते हैं तो पूरा धुआं निकलता है, ट्रेंड बन गया है आज, क्या बोलते हैं उस आइसक्रीम को, मुझे भी इतना याद नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड समथिंग ऐसे डालते हैं, Yeah, निकलता yeah, है। yeah, 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 हाँ, yeah, आप yeah. मार्केट में कुछ भी नया लेके आओ, पीपल विल लव इट, ओके, Right. सो डोंट ट्राई टू प्ले विथ योर बॉडी। अब बच्चे की रिएक्शन से समझ जाओ कि जब वो सॉल्ट या जब भी यहाँ कुछ भी खाता है तो हाउ ही रिएक्ट्स। हम लोग जब भी बहुत मीठा खाते हैं तो हमें दांतों में प्रॉब्लम होती है और फिर Yeah. भी हम इग्नोर करते हैं, दैट्स अ बिग मिस्टेक वी आर डूइंग। सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड एनी सच फूड विच इज वॉलेंट टू योर बॉडी, एंड दैट वन ऑफ Yeah. द फूड इज अ रिफाइंड शुगर, ओके। Okay. सो रिफाइंड शुगर हमको डायरेक्टली मदर नेचर ने नहीं दिया है, मदर नेचर ने हमको डायरेक्टली क्या दिया है, खजूर लटका के दिए हैं उन्होंने, खजूर में कुदरती इतना स्वीटनेस डाला है उन्होंने, तो वी शुड ऑलवेज Yeah. कंज्यूम खजूर। एंड अनदर वे इज जैगरी, तो ऑफ कोर्स जैगरी का एक प्रोसेस है बनाने का, सो इफ यू आर गेटिंग अ जैगरी फ्रॉम योर मार्केट, सो बी श्योर दैट योर जैगरी शुड बी डार्क ब्राउन इन कलर, इट शुड नॉट बी Okay. लाइट इन कलर। Okay. Okay. And what about sugarcane? Sugarcane is a very sweet, it's a very sweet, it's a extract coming from the sugarcane, right? So Right. आप हफ्ते में 1 या 2 बार पिए, अदरवाइज अगर ज्यादा पिएंगे एवरीडे, जैसे अभी सीजन चालू हुआ है, तो ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम ना करें गर्मी की वजह से, नहीं तो इट में रिजल्ट इनटू द डायबिटीज और एनीथिंग, शुगर लेवल हाई कर देगा। सो Okay. फॉर सात्विक पर्सन और एनीबडी हु वांट्स टू लिव अ नेचुरल लाइफस्टाइल, he has to consume sugarcane once in a or twice in a week, not more than that। और डायबिटिक पर्सन को तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, strictly no for them। Okay. And Pawa asks a question pertaining to that. The general mindset is that diabetic people cannot have mango, grapes, chiku. Is that really true? ओके, सो अगर आप मैं बोलूंगा कि ये नेचुरल शुगर्स हैं इसके अंदर, सबकी शुगर का जो होता है ना, नेचुरल ने जो दिया है सबका डिफरेंट है। जैसे कि डेट्स हो गया तो उसकी स्वीटनेस डिफरेंट होती है, एक वाटरमेलन के अंदर स्वीटनेस डिफरेंट होती है, राइट? तो वाटरमेलन के अंदर खाली एक स्वीटनेस नहीं है, उसके साथ उसका फाइबर भी है, उसके साथ एक बीज दिए हैं, एक काफी डिफरेंट टेस्ट दिया है, एक होलसम फूड बनाया है जिसमें उसने सब टेस्ट को बैलेंस किया है प्रॉपरली। Right. तो वो Right. स्वीटनेस डिफरेंट है। अगर आप चीकू लेके आओगे तो चीकू की स्वीटनेस डिफरेंट होती है, यू कैन नॉट कंपेयर स्वीटनेस ऑफ चीकू विद स्वीटनेस ऑफ वाटरमेलन। तो इट इज रियली सेफ फॉर आवर बॉडी इफ वी आर ड्रिंकिंग इट लाइक अ होलसम फ्रूट, लेकिन अगर आप उसका जूस निकाल के पीते हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड, ओके। Yeah. सो इफ एनीबडी हैव एनी डायबिटिक और शुगर प्रॉब्लम, तो वो लोग जूसेस ना पिए। अगर फ्रूट्स खाने हैं तो कम क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में, और एक ही फ्रूट एक ही टाइम पे खाएं, 2-3 फ्रूट्स को मिक्स ना करें, डिफरेंट शुगर्स को कंबाइन ना करें। तो डायबिटिक पर्सन को तो काफी केयर लगता है, काफी ज्यादा केयर लगता है। Okay. Perfect. So that Pawa is Vijay. So yes, he said he will discuss with you personally. All Yeah, right. sure. So मीठा नमकीन हो गया, अब खट्टा, इमली का बताइए। Okay, so see, all this knowledge is coming from not from me or not from anyone. No one is superior. There is only one thing that is superior. That's the Bhagavad Gita. Okay, so Bhagavad Gita verse 8, verse 9 and verse 10 में इन चीजों का जिक्र किया गया है। अगर किसी ने भगवत गीता ना पढ़े हैं तो स्पेशली दोज हु आर इंडियंस और हिंदू, नॉट ओनली इन अवर भगवत गीता बट इन इस्लाम also, or in Jesus also, Jesus Christ, like in the book Eastern Gospel of Peace, which our mentor recommended to us, क्लियरली लिखा हुआ है इन सब चीजों में कि फूड को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, दैट इज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सो सात्विक मीन्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं,
तो जो भी इंसान सात्विक होता है, जो 100% सात्विक होता है, लाइक इफ यू कैन से ब्रह्मा कुमारी इसके लोगों को आपने देखा है कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अच्छे होते हैं, बिकॉज उनका खाना भी अच्छा होता है, ठीक है। सो देयर नेचर हैज अ प्योरिटी, हैप्पीनेस, लाइक उनके अंदर कंपैशन होता है, लव होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं। लेकिन जो राजसिक होता है, राजसिक का जो बिहेवियर होता है वो होता है एरोगेंट होता है, बहुत ज्यादा ईगो होता है उनके माइंड में, एंजाइटी होती है, एंगर होता है, बहुत गुस्सा होता है। एंड कमिंग टू दी तामसिक, तामसिक वाला, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को कुछ करूंगा ही नहीं, सब कुछ है, तो लेजीनेस होता है, टायर्डनेस होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं वो लोग, बैठे बैठे बोलेंगे अरे इतना पैसा है फिर भी टेंशन में रहता है ये बंदा। सो दैट इज तामसिक। सो हमारा खाना भी वैसा ही होता है। जो सात्विक खाना खाएगा ना, मतलब जो भी नेचुरल खाना खाएगा, उनका वो कितना भी गुस्सा करना चाहिए, उनको गुस्सा आएगा ही नहीं। ओके, सो इमली की जहां तक बात करें तो इमली, इमली जो खट्टी है, तो बच्चे को खिलाएंगे तो कैसा रिएक्ट करेगा? नाउ यू ट्राई टू कोरिलेट विद दैट थिंग। तो वो तामसिक नेचर में है, तो हमको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो तामसिक हो। ओके, और इसके बाद भी अगर किसी डिशेस में अगर आपको इमली यूज करनी भी है, जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ इमली कभी कभी, तो क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा भी जरूरी है, थोड़ा सा, और थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है। सो अगर आपको किसी डिशेस में डालनी है तो आप कभी कभी यूज कर सकते हैं इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट्स अ राजसिक इन नेचर। इफ योर लाइफ गोल इज टू बी कम्प्लीटली नो योगी बनना है आपको, आगे चल के अच्छा इंसान बनना है, इफ यू डोंट वांट योर एंगर टू कम आउट, so you should not consume. So it totally depends upon your health goals. Okay, cool. So मीठा, नमकीन, खट्टा, अब कड़वा. Tell us about करेला. तो आप बताओ क्या क्या होता है कड़वे में, किसी किसी को कौन सी कड़वी चीज पसंद है, आप कोई कमेंट्स में लिख सकता है। मेथी भी कड़वी होती है, and what else? So also vegan. They say that yogis don't eat eggplants. So like if you could just Actually, clear this. based on the again भगवत गीता वर्स 8, 9 and 10, उसमें भी वही बोला गया है कि ये चीजें राजसिक नेचर में आती हैं। हर एक वेजिटेबल का ना अपना अपना एक नेचर होता है। जैसे हम स्ट्रॉबेरीज खाएं, तो जब बच्चा स्ट्रॉबेरी खाता है एकदम स्वीट वाली, तो कैसा मस्त खाता है आराम से। अगर मैं उसको थोड़ी देर के बाद में कुछ और दे दूं, करेला दे दूं, जैसा भी लिखा है किसी ने करेला, सो वो नहीं खा पाएगा, ही विल रिएक्ट डिफरेंटली। तो हर फूड का अपना खुद का नेचर होता है, तो बेस्ड ऑन नेचर फूड हमको डिसाइड करना चाहिए कि हमें खाना है कि नहीं। अगर किसी ने यहाँ पे लिखा है कि आई लव नीम, ठीक है, इट्स गुड दैट यू लव नीम, बट यू डोंट नो जब वो बॉडी के अंदर जाएगा, आई नो उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी बात करूंगा अनियन एंड गार्लिक की भी, राइट। सो अनियन एंड गार्लिक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे हमारी सारी सब्जियां तो अनियन में ही बनती हैं, हमारी गार्लिक के बिना, अनियन गार्लिक के दोनों के कॉम्बो के बिना तो हमारी बॉडी में टेस्ट ही नहीं आती है। आज हर होटल में, आप किसी भी बड़ी होटल में जाओ, वहां पे अनियन गार्लिक की पेस्ट रेडीमेड पड़ी रहती है, ठीक है। Even ginger, अदरक. या सो जिंजर इज अलाउड, इट्स अ रूट वेजिटेबल, और काफी लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउड है एज पर सात्विक मूवमेंट एंड सात्विक लाइफस्टाइल। नॉर्मली कोई भी प्योर सात्विक बन नहीं सकता, बिकॉज अगर देखा जाए तो सात्विक लाइफस्टाइल में लेमन भी अलाउड नहीं है। लेमन वॉट एवर इज पंजेंट इन नेचर, जो मैंने बच्चे का एग्जाम्पल जैसे दिया, जो तुरंत रिएक्शन लाता है वो पॉसिबल, मतलब वो आप सात्विक कंसीडर ना करें। लेकिन हमने थोड़ा उनको मॉडिफाई किया है ताकि हम इस लाइफस्टाइल को इजीली एडप्ट कर पाए। इसके लिए वी डू ईट लेमन, समटाइम इमली आल्सो, जस्ट इन अ वेरी लिमिटेड एंड ओकेशनली हम लोग उसको यूज करते हैं अपनी रेसिपीज में। तो जिंजर इज वन ऑफ देम। कमिंग टू अनियन एंड गार्लिक, अभी आपने देखा है कभी कोई अनियन खा के आता है तो उसके मुंह से कितनी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है उससे। सो आपकी बॉडी में जाके वो क्या काम करेगा आपको पता है। सो वी नो दैट अनियन, गार्लिक या नीम हो चाहे करेला हो, ये सब ना एज अ मेडिसिनल फूड है हमारे बॉडी के लिए। तो इनको हमको डेली सारी सब्जियों में नहीं खाना है, ठीक है। तो इट्स अ मेडिसिनल फूड, और मेडिसिन हम तब खाते हैं जब हम बीमार होते हैं। बिना बीमारी के मेडिसिन हम नहीं खाते कभी भी। Correct. So this to be noted that you can have them when you are sick, when you really need them, but try to avoid them, not on a daily basis. That sounds good. Kamal, I'm a little worried about the live. Matlab, we are 1 hour 13 minutes. Yeah. So what should we do? Because I don't know. Matlab, what if we finish it आराम से 1-1.5 घंटे में, उसके बाद
save nahi ho. I'm a little this. So should we just end it and should we just come back? Sure. That'll be better. Sure, Okay, sure. everybody, please. The Paradigm Shift Co will just come back live with the navigator. So please come back. I am a little skeptical about this 1 hour, 60-minute IGTV thing, right? Yeah, yeah. Okay, Okay. guys, Thank you. Thank you. join us back. Thank you. Come back.